Hello students, welcome back. From our corporate and other law subject, the fourth point, the general principles of corporate laws, under which fourth point, the first module, general principle of corporate laws, and the fourth point, consideration. It's legal rules, doctrine of priority, and the exception. This will be considered in this video. So let's begin. So what is consideration? It's legal rules. So consideration is nothing but a price of the promise, price of the contract. That may be from maybe so this kind of statement is quite wrong, but the consideration is from both parties, means the promiser also and the promisee. And without any consideration, any agreement can't become enforceable contract. And when the contract is enforceable, valid, there should when there is a consideration. So it is the most important essential part of any valid contract is the consideration. Without consideration, any agreement can't become a contract which is enforceable by law. So, to make any agreement as a contract for enforceable by law, there must be a promise. Consideration. So, in simple words, we can say consideration means something of value given in return for the promise. It is often called as a price of the promise. Indian Contract Act says that when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, from desire of the promiser, promisee or any other person does something, does not do something, or promise to do something, or promise not to do something, such act is called as a consideration. That act may be promise, maybe anything act, anything substantial thing, that may be a consideration. So consideration is nothing but something given or promise in exchange for a promise. Example, suppose Rahul sells his laptop to Amit for rupees 40,000. So here, both parties' point of view, Rahul's consideration is laptop and Amit's consideration is 40,000. So both parties give something in return of the what he have. So consideration is the foundation of the foundation that transforms the promise, that the agreement, into the enforceable contract. Without consideration, it can't become a enforceable contract. So what are the rules of the consideration? Normally there are 6 rules. I merge one rule into one, 2 rules into one for presentation purpose. So consideration must be at the desire of the promiser. Means any act that must be done because the promiser requested for. Suppose a person asked B to paint his office for certain consideration, and the B person paints his office, A's office. At that time, the promiser, the A person, must pay something to B because the work was done at the A's request. प्रॉमिसर ने उसको बोला था कि मेरा ऑफिस पेंट कर दो, मैं कुछ दूंगा. तो ऑफिस पेंट करने के बाद जिसने प्रॉमिस किया था उसने
पेमेंट करना होगा, क्योंकि उसके ही रिक्वेस्ट से वो काम किया गया है। अगर बी पर्सन ने विदाउट आस्किंग, यानी बगैर रिक्वेस्ट किए, बगैर पूछे बताते हुए उसने ऑफिस पेंट कर दिया, तो जिसका ऑफिस है वो उस पे बाइंडिंग नहीं है कि उसने कुछ तो कुछ पे करना होगा। तो at the desire of the promisor. This is the first rule. Second, consideration may move from promisor or any other person. यानी कंसिडरेशन जिसने पे करना है, यानी प्रॉमिसी, उसने ही उसको पे करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, प्रॉमिसी, सपोज एनी अदर पर्सन पेज दैट कंसिडरेशन, इट्स आल्सो ओके। So Indian law allows this type of payment. यानी प्रॉमिसी भी पे कर सकता है, प्रॉमिसी के ऑन बिहाफ एनी अदर पर्सन। यानी सपोज राहुल ने उसका लैपटॉप अमित को भेज दिया, तो अमित ने उसके लिए पेमेंट करना होगा, मगर रादर पेमेंट बाय अमित, अमित के फादर ने उसको पेमेंट कर दिया राहुल को। तो इज इट वैलिड? यस, इट इज वैलिड। तो प्रॉमिसी या प्रॉमिसी के ऑन बिहाफ ऑफ किसी ने भी अगर पेमेंट किया, यानी कंसिडरेशन पे किया, तो दैट एग्रीमेंट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडियन लॉ अलाउ करता है। तो तीसरा रूल क्या है उसका? कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी अगर कुछ पिछले महीने या पिछले हफ्ते कुछ किया होगा, उसके लिए आज कुछ एग्रीड करके कुछ पे कर दिया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ it is also valid, so it is called as a past consideration। यानी पिछले हफ्ते किसी ने, मेरे फ्रेंड ने या किसी और पर्सन ने मुझे कुछ मदद की थी, और मुझे आज लग रहा है कि यार वो मदद तो बहुत बढ़िया थी, उसके आधार पे मुझे कुछ बहुत फायदा हुआ, तो लेट्स मैं उसको कुछ पे कर देता हूँ। तो अगर उसके लिए मैंने, उस एक्ट के लिए मैंने अभी पेमेंट का एग्रीमेंट कर दिया और उसको पे कर दिया, तो भी इट्स ओके। तो ये भी कंसिडरेशन हो सकता है, बोल सकते हैं। और इसको पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन यानी क्या? कि जो हम दुकान में जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ बुक वगैरह या कुछ भी थिंग्स लेते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं, तो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोल सकते हैं। और फ्यूचर कंसिडरेशन यानी आज कुछ महीने पे कर दिया और उसका उसके लिए एक्ट अगले हफ्ते मैंने उसको बोल दिया, तो वो भी चलेगा। या नॉर्मली जो बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहते हैं, आज कुछ सेल कर दिया, उसकी अमाउंट मुझे एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद मिलेगी, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन बोल सकते हैं। तो चौथा रूल क्या है? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल ऑल्सो। ये दो मैंने, रियल एंड लॉफुल, दो मर्ज कर दिए। तो रियल यानी क्या? इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इलीगल भी नहीं होना चाहिए, फिजिकली पॉसिबल ही चाहिए, इल्यूजरी म्हणजे फेक नहीं होना चाहिए। यानी जो प्यार में बोलते हैं ना, मैं तेरे लिए चांद भी तोड़ के लाता हूँ, हाँ, ये ठीक है, वो प्यार में ऐसा बोल, मगर ये रियल में कंसिडरेशन, चांद को पृथ्वी पे लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ने बोला कि मैंने ये कर सकता हूं, तो जो इम्पॉसिबल है वो कंसिडरेशन हो ही नहीं सकता। सो इट एट दैट टाइम दैट एग्रीमेंट कांट बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स अ void contract, and it also must be a lawful। यानी फ्रॉड के बरा, इलीगल एक्ट्स या इमोरल एक्ट्स या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ एक्ट करने के लिए बोल दिया, यार मेरे लिए अमेरिका से कुछ स्मगल करके लाओ, मैं तुम्हें इतनी इतनी अमाउंट देता हूँ, which is not allowed। ये this can't be a valid consideration, and it doesn't leads that agreement towards a enforceable by law, so it becomes void contract। तो लॉफुल भी होना चाहिए। और लास्ट रूल क्या है? कंसिडरेशन नीड्स टू बी एडिक्वेट। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए, यानी
the law requires consideration to exist, but it cannot need to be equal in the value. And Rahul sells his watch worth rupees 20,000 to Amit for rupees 15,000. Although the price is lower, the contract is still valid because there is lawful consideration. So, adequate valuation ही होना चाहिए. ऐसा कुछ अगर दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर दिया कि यार इसकी वैल्यू 1 लाख की प्राइस है मार्केट में और मैं उसको 50,000 में देने वाला हूँ, वो लेने वाला भी एग्री है और मैं देने वाला भी एग्री हूँ, तो वो बोलते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, उस टाइप. बट देयर शुड बी अ कंसिडरेशन. मीन्स 1 लाख रुपए की वस्तु फ्री में देना है तो इट कांट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज नॉट एन कंसिडरेशन. अगर 1 रुपया भी देना होगा और वो बोथ पार्टीज ने मान लिया तो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट because there is a consideration even if the consideration the price is not adequate. Okay, तो इस रूल के लिए कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. क्या है इसका मीनिंग? क्या द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue और बी sued ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. यानी जो पार्टी इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट में वही पार्टी एक दूसरे के ऊपर दावा ठोक सकते हैं अगर वो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है, जनरली ही कांट एनफोर्स इट. यानी वो पर्सन जो उस कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है तो उस अदर पार्टी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकते, यानी कोर्ट में दावा नहीं दाखिल कर सकते अगर वो उसका बेनिफिशियली हो या ना हो. सो दिस रूल means that only the people who have entered into the contract have legal rights and responsibilities under the contract. जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है उसके ऊपर लीगल राइट्स भी बनते हैं, उसको राइट्स मिलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सू करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसको लेनी पड़ती है. अगर उसकी तरफ से कुछ दिक्कतें आती है तो उसको अगली सामने वाली पार्टी फाइन दावा दाखिल करती है. यानी इफ वन पार्टी ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ओनली द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस, कैन सू इन अ. सो who can sue? Only the contracting party whose rights are violated. जिसके राइट्स, जिसका हक था उसको नहीं मिला तो वही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सू कर सकती है. यानी ओनली द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल बी सूड. और किसके ऊपर? तो हु कैन बी सूड? जिसके ऊपर ओनली पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ओनली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु ब्रीच्ड द एग्रीमेंट, जिसने एग्रीमेंट तोड़ा है ओनली. तो a person who is not a party to the contract normally cannot sue or be sued even if that person benefits from the contract. अगर उसको उसका बेनिफिट हो भी रहा होगा तो भी वो सू नहीं कर सकता. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं. तो राहुल एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ अमित टू डिलीवर द फर्नीचर. राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अमित से कि जो फर्नीचर डिलीवर करेगा. राहुल फेल्स टू डिलीवर. राहुल ने वो फेल डिलीवर करने से वो चूक गया तो ओनली अमित कैन सू राहुल. Amit's friend cannot sue the file in the court
because he is not a party of the contract. तो जो पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ये रूल है। तो प्रीवर्टी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों में क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवर्टी ऑफ कंसिडरेशन, अंडर द इंडियन लॉ कंसिडरेशन में बी फ्रॉम प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी जो रूल हमने देखा ना कि प्रॉमिसी ने कंसिडरेशन पे करना है, जो प्रॉमिसी है उसके बजाय उसके ऑन बिहाफ ऑफ किसी ने पेमेंट किया तो चलेगा, इट इज एक्सेप्टेड। तो प्रीवर्टी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इसेंशियल। तो ये इसेंशियल नहीं है कि पेमेंट तो कोई भी कर सकता है, पेमेंट किया उसी पार्टी में जो इन्वॉल्व पार्टी है उसी ने पेमेंट करना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तो दैट इज अ प्रीवर्टी ऑफ कंसिडरेशन। और प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बट मींस इसेंशियल। प्रीवर्टी ऑफ कंसिडरेशन यानी जो पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, वो पेमेंट कर सकती है, कंसिडरेशन पे कर सकती है, मगर प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियल। क्या है कि जो पार्टी इन्वॉल्व है वही ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के वक्त अनदर पार्टी, सामने वाली पार्टी को फाइन लगा सकती है, कोर्ट में खींच सकती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये दोनों में फर्क है। although anyone may provide consideration, only the parties who entered into the contract have the legal right to enter to enforce it. इस एग्जाम्पल में अमित कैन सू राहुल, ही इज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अमित ने अमित के फादर ने 40,000 पे कर दिए अमित के लिए, अमित ने परचेस किया था राहुल से, तो ये चलेगा। मगर अगर उस लैपटॉप में कुछ दिक्कतें आती है, लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके अगेंस्ट राहुल के फादर कोर्ट में उसको सू नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज द कोर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। तो हु कैन पे, ये इजी रिमेंबर के लिए ध्यान में रख सकते, हु कैन पे एनीवन, promisee or any other person, but who can sue? Only the parties to the contract can sue the another party. And key formula क्या, payment consideration anyone can give it, legal rights contract only contracting person can enforce it. This is the thing. एग्जाम टिप के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, ऑलवेज स्टेट बोथ प्रिंसिपल्स, प्रीवर्टी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इसेंशियल एंड बट प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियल इन इंडिया। गॉट इट? बट उसके लिए एक्सेप्शन भी है। किसके लिए? प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्ट्रिन है, यानी जो पार्टी इन्वॉल्व है उसी ने सू करना है, ये जो डॉक्ट्रिन रूल है उसको एक्सेप्शन है। क्या है? बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट जो है उसको एग्जम्पशन है, यानी बहुत सारे 2-4 एग्जम्पशन है। अ ट्रस्ट इज लीगल एग्रीमेंट arrangement where one person called the trustee holds or manages property or money for the benefit of another person called the beneficiary. तो ट्रस्ट किया है, जो ट्रस्टी रहता है वो मैनेज करता है वो प्रॉपर्टी और या पैसे कोई भी, किसके लिए? बेनिफिशियरी शायद अलग रहता है। तो इस केस में बेनिफिशियरी अगर पार्टी नहीं है तो भी ट्रस्ट डीड के हिसाब से वो पार्टी बेनिफिशियरी है। लॉ अलाउज द बेनिफिशियर टू
sue in the court. ये एक्सेप्शन किसके लिए? बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट हु कैन एनफोर्स बेनिफिशियरी. इलस्ट्रेटिव एग्जांपल क्या? स्टूडेंट क्लेमिंग एजुकेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम अ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर देयर बेनिफिट. तो अगर उसको बेनिफिट नहीं मिला तो वो कोर्ट में जा सकता है. ये so why this exception is there? The beneficiary has the beneficial interest in the trust property. Therefore, the law protects the beneficiary's right. That's why beneficiary has the right to sue in the court. एक एग्जांपल ले सकते हैं. मिस्टर शर्मा क्रिएट्स अ ट्रस्ट एंड डिपॉजिट 20 lakhs in the trust. The trust deed states that the income from this amount shall be used to pay the education expenses of his grandson. So शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक ट्रस्ट किया है. ट्रस्ट में एक ट्रस्टी है हु इज अ मेजर पर्सन. तो उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो रोहन जो ट्रस्टी है रिफ्यूजेस टू पे रोहन्स एजुकेशन. ग्रैंडसन रोहन है. तो ट्रस्टी जो है वो रोहन के फीस पे करने से मना कर रहा है. तो रोहन कैन फाइल अ केस इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट. गॉट इट? एक और भी एग्जांपल हम देखेंगे. चैरिटेबल ट्रस्ट है क्रिएटेड टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू पुअर स्टूडेंट्स. वन एलिजिबल स्टूडेंट इज डिनाइड the scholarship without any valid reason, so student can enforce this trust. So key points क्या बोल सकते हैं? beneficiary plus trust is equal to give to the enforce, right to the enforce. फैमिली सेटलमेंट में भी ये एग्जाम्पशन है. फैमिली सेटलमेंट और मैरिज के बारे में. तो कोर्ट गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू द एग्रीमेंट made for maintaining peace and harmony within the families. That's why when family member enter into a settlement or marriage agreement for the benefit of another family member, that beneficiary can enforce the agreement even if he or she was not the party. Why it is this exemption? The objective is to preserve family relationships and ensures that the promises made for family welfare are honored. Example देखते हैं. During the partition of the family property, two brothers agrees that our sister Priya shall receive 15,000 every month for her maintenance. So both brothers agree such things. Priya did not sign the agreement. Priya ने वो agreement sign भी नहीं किया. मगर she is a beneficiary. If the brother stopping paying, Priya can sue to recover the maintenance. So this is the example. Second example भी दे सकते. Before marriage, the bride's father and the groom's father agree that the bride will receive a fixed amount every year after marriage. Even though the bride did not sign the agreement, she can claim the amount. और भी एग्जांपल देख सकते हैं. A grandfather settles the property among his son with the condition that they will maintain their widowed mother. The grandfather ने प्रॉपर्टी सेटल के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी दी है और कंडीशन क्या है? विडोड मदर को मेंटेन, उसको देखभाल करना है. एंड इफ दे रिफ्यूजेस द मदर कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट. सो बेनिफिशियरी फैमिली मेंबर कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट. तीसरा एग्जांपल उसके एक्सेप्शन क्या? एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल मीनिंग. यानी समटाइम्स अ पर्सन एडमिट्स एक्नॉलेज दैट he owes money to the someone. Once such an admission is made, that person cannot later deny the liability. This is based on the legal principle of estoppel, which prevents the person from going back on a representation that another person has relied upon.
उसका एग्जाम्पल देखेंगे। अमित ने कुछ रुपए दिए राहुल को, किस लिए, एंड इंस्ट्रक्ट किस लिए, प्लीज पे हिम अमाउंट टू विजय। अमित ने राहुल को पेमेंट किया विजय को देने के लिए, और राहुल ने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्ट किया मनी, और विजय को देने का प्रॉमिस भी किया। लेटर राहुल ने उसको डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो विजय क्या करता है, यानी राहुल ने उसको बता भी दिया था कि आई रिसीव्ड मनी फ्रॉम अमित टू पे यू इन नेक्स्ट वीक, बट आगे जाके राहुल ने उसको पेमेंट देने से मना कर दिया। तो विजय उस एग्रीमेंट में, अमित और राहुल के एग्रीमेंट में पार्टी नहीं था, बेनिफिशियरी था। फिर भी अमित विजय राहुल के अगेंस्ट सू कर सकता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया था कि ये, दैट इज द प्रॉमिस ना, कि विजय को देना है। तो विजय, इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो डॉक्ट्रिन है प्रिवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन है, विजय कैन सू इन द कोर्ट। एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि राहुल नहीं बोलते, एम्प्लॉयर डिडक्ट्स एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन एंड राइज टू द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंफर्मिंग दैट अमाउंट पेएबल, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फोर्स द पेमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इज राइट टू सू। और एक असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो असाइन नहीं है, असाइनमेंट दिया गया, असाइनमेंट यानी क्या, लीगली ट्रांसफरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द पर्सन ट्रांसफरिंग द राइट्स इज कॉल्ड एज असाइनर, द पर्सन रिसीविंग द राइट्स इज कॉल्ड एज assigner and assignee. Once the agreement is valid, the assignee gets the same legal rights as the original party. यानी असाइनर ने अगर असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट कर दिया, तो असाइनी, इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी, कैन गेट द राइट्स ऑफ द ओरिजिनल पार्टी। राइट्स कैन बी असाइन, बट पर्सनल ऑब्लिगेशन कैन, ये ध्यान में रखना। राइट्स असाइन हो सकते, ऑब्लिगेशंस नहीं, अनलेस द अदर पार्टी एग्रीज। एग्री भी किया तो भी ऑब्लिगेशंस बाइंडिंग नहीं रहते। एग्जाम्पल देखते हैं, एबीसी बैंक है, गिव्स अ हाउस लोन टू मिस्टर कुमार। लेटर एबीसी बैंक ट्रांसफर द लोन अकाउंट टू द XYZ बैंक, यानी बैंक ने लोन ट्रांसफर कर दिया। नाउ XYZ बैंक बिकम द असाइनी। इफ Kumar does not repay the loan, XYZ can recover the amount, money from जो कुमार के से वो लोन रिकवर कर सकते हैं बाय टेकिंग लीगल एक्शंस। और एक एग्जांपल बता सकते हैं, सप्लायर सेल्स गुड्स वर्थ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट। लेटर ही असाइंस हिज राइट्स टू रिसीव अमाउंट दैट पेमेंट टू फाइनेंस कंपनी। यानी क्रेडिट सेल किया है और एक एजेंसी को, फाइनेंस कंपनी को राइट दे दी कि वो रिकवर कर दो, तो फाइनेंस कंपनी कैन रिकवर द अमाउंट। सेल एग्रीमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी फाइनेंस कंपनी कैन रिकवर दैट। सेम, insurance policy holder assigns the policy to another person, the new owner can claim the insurance benefits. Same. So legal transfer of rights is equal to new person can enforce the contract. एजेंसी यानी प्रिंसिपल और एजेंट, ये दो पर्सन रहते हैं ना एजेंसी में। द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क इज डन, पर्सन अथोराइज्ड टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। यानी एजेंसी हो, किसी ने, मैंने एजेंसी ली तो मैंने किसी से एग्रीमेंट किया, तो आई एम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यानी जो जिससे पास से मैंने एजेंसी लिए, तो अगर मैं एजेंट हूं और मैं साइन कर रहा हूं, तो भी किसके बिहाफ है, मेरे
प्रिंसिपल पर्सन के बिहाफ से मैं साइन कर रहा हूं, तो दैट प्रिंसिपल पर्सन कैन आल्सो एग्जीक्यूट द सेम राइट्स दैट आई एंटर एट द सेम राइट्स by entering in the that I am entering in the contract. So exemption क्यों है? The agent merely representative, मैं सिर्फ representative, real contracting person is a principal. ABC कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ऑथराइज इट्स परचेस मैनेजर टू बाय मशीनरी. मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया मशीनरी के बाय करते वक्त किसी अनदर सप्लायर कंपनी से, तो सेलर ने रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी देने से, तो कंपनी कैन सू. परचेस मैनेजर छोड़ भी चुका होगा वो कंपनी, फिर भी कंपनी अगर पर्सनली दैट परचेस मैनेजर एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, even if he is a person entering in the contract, but he is acting on behalf of the company, so company can sue the seller. उसी तरफ से प्रॉपर्टी ओनर अपॉइंट्स अ ब्रोकर टू सेल द हाउस, वही एग्जांपल बोल सकते हैं. या कंपनी ऑथराइज एन एम्प्लॉय टू परचेस कंप्यूटर, सेम एग्जांपल. यानी बहुत सारे. तो agent acts for principal, so principal can enforce the contract. और एक एक्सेप्शन क्या है? चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज. चार्ज मीन्स क्रिएटिंग अ लीगल राइट्स, जो मॉर्गेज बोलते हैं ना, और एनी प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द मनी और फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, दैट इज अ चार्ज. If the contract creates such a charge for the benefit of third person, that beneficiary can enforce the contract. So exemption क्यों है? The beneficiary requires a legal interest in the property. Example देखते हैं. A father transfer his house to his son on the condition that the son shall pay 20,000 every month to his widowed mother. The house is legally charged with his obligation. So, if the son refuses to pay, the mother can approach the court and enforce the charge. Our example, a person gives agricultural land to his son with a condition that his unmarried daughter will receive maintenance from the income of this land. The daughter can enforce his right, her right against the property. Same. ऐसे बहुत सारे हम examples बोल सकते हैं. So these are the exceptions. Okay. So important points बहुत सारे. Consideration is equal to price of the promise. Type of consideration क्या हो सकता है? Past, present, future, ये type से. Real जो रियल होना चाहिए कंसिडरेशन, लॉफुल होना चाहिए, और दैट मे नॉट बी एडिक्वेट आल्सो, ये भी चलेगा. और प्रियोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियल, बट प्रियोरिटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इसेंशियल. द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट must can sue the another person, but there are some exception also that we seen last last slide. Okay, the second point, capacity of contract. तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? तो माइनर, थोड़ा फास्ट लेंगे, वीडियो लेंदी हो रहा है. माइनर पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स, यानी माइनर पर्सन जो अनसाउंड माइंड के पर्सन है वो, और जो लॉ से डिस्क्वालिफाइड है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं ले सकते. दे कांट बिकम अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो माइनर यानी आपको मालूम है हु इज माइनर. तो माइनर यानी बिलो 18% इंडिया में, तो माइनर पर्सन कांट बिकम, उसके लिए कैपेसिटी ऑफ पर्सन उसको डिफाइन करना पड़ेगा. तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगली
ability of the person to enter into the contract. म्हणजे the parties must be legally competent to enter into the contract. Then that contract it becomes a legal contract or enforceable. A person who is not legally competent cannot make a valid contract. जो सेक्शन 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉम्पिटेंट है वही सिर्फ एंट्री कर सकती है. तो हु इज कॉम्पिटेंट? तो हैज अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी. जो मेजोरिटी अटेंड कर सकता है, करता है, वही कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकता है. इज द साउंड माइंड. वो साउंड माइंड चाहिए, यानी जिसको पागल, उसके दिमाग पे कुछ असर नहीं चाहिए किसी को, यानी जो नॉर्मल पर्सन जैसा बिहेव चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए. तो साउंड माइंड पर्सन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. और थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी किसी भी लॉ की तरफ से उसको डिस्क्वालिफाइड या इसको क्या बोलते हो, नादार, यानी यार इंग्लिश वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि, सॉरी आई कांट मेमोराइज दैट, रिकॉल दैट वर्ड. दिवाळखोर जिसको बोलते हैं. तो such person cannot enter into the contract. तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए वो एंट्री नहीं कर सकते. कॉम्पिटेंट पर्सन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. If any one of these conditions is not satisfied, the person is not a competent of the to contract, to make a contract. So minor की definition क्या है? Who is not completed his 18 year of his age. So minor agreement is void. Cannot ratify a contract. म्हणजे minor person cannot ratify the contract made, यानी उसको क्या बोलते हैं कि यस मैंने किया था, ऐसा भी वो नहीं बोल सकता. यानी क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जांपल ऐसे देखिए कि माइनर होते हैं, यानी सपोज वो 17 इयर्स और 6 मंथ्स एज का में होने जब था, वो उस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, और 18 के बाद उसने कंफर्म कर दिया यस मैंने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो भी वैलिड नहीं है. इट इज आल्सो नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी. माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे ग्रैंडफादर ने प्रॉपर्टी सन को ट्रांसफर की ग्रैंडसन के लिए बेनिफिशियर किया, तो ग्रैंडसन में भी अ माइनर. नॉट पर्सनली लायबल, यानी अगर वो माइनर पर्सन लोन, यानी क्या, किसी एग्रीमेंट में बेनिफिशियरी है मगर लायबल हो सकता है क्या? नहीं. माइनर पर्सन कैनॉट बी इन्फोर्स टू रिपे लोन और परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस. तो या माइनर पर्सन गलती से भी एंट्री कर दी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, या कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया किसी ने, तो यानी किसी शॉपकीपर ने उसको बेच दिए कुछ गुड्स, और उसको मालूम ही नहीं था वो माइनर है, और माइनर ने पेमेंट नहीं किया, तो शॉपकीपर उससे रिकवर नहीं कर सकता. माइनस प्रॉपर्टी में बी लायबल फॉर नेसेसरीज, यानी ये है कि माइनर इज नॉट लायबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड. आणि नेसेसिटी जो सप्लाईज आहे, यानी म्हणतात ना मूलभूत गरजा, त्याच्यासाठी काही गोष्टी त्यांनी घेतल्या असतील तर त्याच्यासाठीचे मात्र, म्हणजे
a supplier of necessaries can recover reasonably cost of the minor's property, not from the minor personally. म्हणजे जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल किया है तो उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, पर्सनली उसको चार्ज नहीं कर सकते. जो इसेंशियल गुड्स सर्व्हिसेस, जो की मूलभूत गरजा म्हणतो आपण, ते फूड या ऑल दिस थिंग्स. इसेंशियल थिंग्स में सर्विस भी आ सकती है. सपोज एक डॉक्टर ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया माइनर को, तो उसकी आवश्यकता थी इसलिए डॉक्टर ने कर दिया, तो डॉक्टर कैन रिकवर द रीजनेबल कॉस्ट फ्रॉम द माइनस प्रॉपर्टी. एक कंप्यूटर डीलर था, उसने लैपटॉप 50,000 का लैपटॉप 17 वर्ष की स्टूडेंट को सेल कर दिया, और स्टूडेंट ने रिफ्यूज कर दिया उसका पेमेंट करने के लिए. तो डीलर कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द बायर इज अ माइनर and computer is not a essential necessary thing. So while entering into the contract, always see that the person जो सामने वाला है वो माइनर है या कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये बात जरूरी है. पर्सन अनसाउंड माइंड, यानी when a person is according to 12, person of a sound mind of the purpose for making the contract, if at the time of making it he is capable of क्या अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो उसको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, समझ अंडरस्टूड है क्या, तो वो कॉम्पिटेंट है. रैशनल जजमेंट, तो फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, यानी उसका भविष्य के ऊपर उसको क्या क्या ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो सकते हैं, वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये उसको देखना चाहिए. ये अगर हो सकता है तो अ पर्सन हु कैन नॉट डू दिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट. यानी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं और उसमें क्या क्या हम एग्रीड कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट के वक्त साइन करते वक्त उसको समझ में नहीं आ रहा है या उसके परिणाम क्या होंगे वो उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है. मेंटली इल पर्सन होगा या कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, या ड्रंक पर्सन, यानी जो दारू पिया हुआ पर्सन रहता है, उसकी दारू जब तक उतरती नहीं है तब तक वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर, उसके एक्ट के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता. तो एट दैट टाइम also that period, उस वक्त वो पीरियड के हिसाब से, यानी 4-5 घंटे 10 घंटे वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है. उसको टेम्परली इनकेपेबल ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बोल सकते. तो अनसाउंड माइंड एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं. मेंटली इल पर्सन, वही अभी जो मैंने बोला वही एग्जांपल से. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग lucid intervals when capable of understanding. यानी टेम्पर बीच में के कालावधि में वो एंट्री कर सकता है अगर उस वक्त उसको अंडरस्टैंड हो रहा है और उसके रैशनल जजमेंट वो कर सकता है. तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यानी क्या, some person are legally prohibited to entering into the certain contract even if they are major and sound mind. The law may restrict their contractual capacity. एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं कि एलियन एनिमीज, यानी एलियन यानी पृथ्वी के बाहर के, ऐसे नहीं यहाँ पे, तो सिटीजन ऑफ कंट्री एट वॉर with India, that time that person is called as a alien enemies. Insolvent person, insolvent person, दिवाळखोर, subject to legal restrictions, convicts during certain periods
ऑफ imprisonment subject to law, ये भी इनकॉम्पिटेंट और अनलॉफुल पर्सन बोल सकते हैं। फॉरेन फॉरेन लॉयल्स एंड डिप्लोमेट्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और क्या कि कंपनीज, अल्ट्रा वायरस एग्जाम्पल से, कंपनीज एक्टिंग बियॉन्ड देयर पावर्स, अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलते, कैनॉट एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिनको कंपनी में उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उनके रजिस्ट्रेशन के वक्त जो फील्ड, जो एरिया उन्होंने उनको तय किया है, उसके बियॉन्ड जाके वो किसी भी एरिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ बोल सकते। एक की पॉइंट्स है, 3 conditions: major, sound mind, and not disqualified by law. That person can only enter into the contract. Minor agreement, void ab initio means what? Void from the beginning. A minor cannot rectify it after attending majority. यानी पहले void था और अब मेजर हो गया तो वो वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। तो void from the beginning. Major can be a beneficiary, minor can be a beneficiary, but liable नहीं हो सकता, beneficiary हो सकता है। Unsound mind and disqualified person cannot be a enter into the contract. फॉर्मूले दिए, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये आपको मिलेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्री कंसेंट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए। विदाउट फ्री कंसेंट अगर होगा, यानी कंसेंट यानी एक्सेप्टेंस फ्री नहीं होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो क्या हो सकता है कि फ्री कंसेंट यानी क्या? कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये अगर हो तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। One of the most important essential part of making to make a valid contract, free consent. Even if there is an offer, acceptance, consideration, and capacity to contract, the contract will not be valid unless both parties give the free consent. यानी ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, मगर वो कंसेंट है, वो फ्री कंसेंट है, सो वैलिड नहीं होगा। देयरफॉर फ्री कंसेंट इज एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज कंसेंट? तो सेक्शन 13 बोलता है, कंसेंट मीन्स 2 or more persons agrees upon the same thing in the same sense. Same thing on the same agreement is must, but the thing should be the same and the sense should be the same. This is called as a consensus ad idem. कॉन्सेंसस एड इदम, ऐसा उसको बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द सेम टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टर्म जो है उसके मीनिंग सेम दोनों को होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं, राहुल एग्रीज टू सेल हिज होंडा सिटी कार टू अमित फॉर ₹8 lakh. So Amit also agrees to buy the same Honda City car for 8 lakh. Both are talking about the same car at the same price. Therefore, there is a consent and that is a free consent. तो फ्री कंसेंट, ये कंसेंट है, और फ्री कंसेंट क्या है? यानी कंसेंट यानी सेम थिंग सेम सेंस। फ्री कंसेंट क्या है? तो free consent is the consent which is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. So these are, if consent is obtained through any of these, the contract may be become voidable or void, depend on the situation.
यानी धमका के, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के, मिस रिप्रेजेंट करके, यानी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दे दी या बाय मिस्टेक, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो फ्री कंसेंट हो तो ही वैलिड होता है। तो कोई coercion means what? Forcing a person to enter into contract by committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code or by unlawful obtaining or threatening to detain property is called as a coercion. तो इसके तहत अगर कंसेंट हो तो वो फ्री कंसेंट देंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि coercion means using force or threats to make someone enter into the contract. So essential point क्या है? There must be force or a threat. यानी ये coercion प्रोनाउंस शायद गलत हो रहा है मेरा, तो उस कब बोल सकते हैं? तो देयर मस्ट बी अ फोर्स और अ थ्रेट. द फोर्स और थ्रेट मस्ट बी इलीगल. बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ थ्रेट द पर्सन गिव्स कंसेंट. Rahul tells Amit, sell your land to me or I will beat you. So Amit becomes afraid and signs the agreement. His consent obtained by coercion. So it is not allowed. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस यही कि पॉलिटिकल प्रेशर या पोजीशन, पावर, अथॉरिटी के कारण उस पे दबाव आ रहा है, या पेरेंट चाइल्ड हो, या डॉक्टर पेशेंट हो, लॉयर क्लाइंट हो, या टीचर स्टूडेंट, ये इसके पोजीशन के हिसाब से या पावर के कारण कंसेंट दी हुई, तो वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं हम। जरा मैं भगा रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या है? मेथड कोरिशन में यूज फोर्स, थ्रेट और इलीगल एक्ट्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस में पावर यूज किया जाता है, अथॉरिटी यूज की जाती है, ट्रस्ट। टाइप्स ऑफ प्रेशर, फिजिकली और इलीगल प्रेशर, और इसमें मेंटल और मॉरल प्रेशर। रिलेशनशिप, नो स्पेशल रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप रहती है, ट्रस्ट रहता है, अथॉरिटी रहती है। पार्टीज इन्वॉल्व कैन बी बिटवीन स्ट्रेंजर्स, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी में इन्वॉल्व क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी। जनरली अनड्यू इन्फ्लुएंस में सिविल रॉन्ग कोड्स रहते हैं, नॉट क्रिमिनल। तो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत भी जो कंसेंट दी होती है, वो भी क्या बोल सकते हैं? फ्री कंसेंट नहीं है, और वो वाइड बन जाता है। मैं भगा रहा हूँ। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो इंटेंशन, पर्पसफुली किया गया रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो दी है, वो फेक इंफॉर्मेशन, वो पर्पसफुली रहती है। मिस रिप्रेजेंटेशन है इंटेंशनली, ऑनेस्टली वो गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। मोटिव फ्रॉड का ही रहता है, या मोटिव फ्रॉड का नहीं, तो गुड फेथ में किए गई गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की होती है। नेचर, डिलिबरेटली डिसिप्शन और डिसऑनेस्टी। ये मिस रिप्रेजेंटेशन में ऑनेस्ट मिस्टेक और इनकरेक्ट बिलीफ रहता है। डैमेज, अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेज। जनरली ये राइट नहीं रहता, मगर उसकी भरपाई दी जा सकती है। डिफेंस में क्या है? फ्रॉड cannot be excused by saying the other party could have discovered the truth. ये नहीं बोल सकते, मगर यहाँ if the truth could have been discovered with ordinary diligence, contract may not be voidable. ये होता है। तो बाय मिस्टेक ये भी मैं भगा रहा हूँ। मिस्टेक बाय फैक्ट और मिस्टेक बाय लॉ, ये जरा आप नोट्स में से रीड कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
मैं थोड़ा भगा रहा हूँ, बहुत ही लंबा खींच रहा है लिख। ठीक है, वन लाइन रिवीजन भी मैं आगे जाता हूँ। आगे परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो एग्रीमेंट किया है, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, उसको एग्जीक्यूट करना यानी परफॉर्मेंस। और डिस्चार्ज बाय, उसको डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आफ्टर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, both parties must perform their promises. When the promises are performed, the contract comes to an end, and this is called as a discharge of contract. And a performance as per the contract, as per the agreement, as per the promises made by both parties is completed, then that contract is called as a discharge of the contract. That contract is discharged, यानी complete हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम। Sometimes contract may also end without performance. ये हो सकता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। तो ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी रीजंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या नहीं यार ये कैंसिल कर दे, ऐसे पॉसिबल हो सकता है, यस हो सकता है। या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी वो पूरा करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके कारण भी वो खत्म हो सकता है। या ब्रीच, यानी वो एग्रीमेंट प्रॉमिस तोड़ने के। और ऑपरेशन बाय लॉ, यानी लॉ के तहत भी उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये स्लाइड में मैं ज्यादा आगे जस्ट मिनट, who must perform? Generally, the promiser, the person making the promise must perform. However, the performance may also be done by the person himself, his legal representative, an authority person, or third person, if accepted by the promise. But the promise must be fulfilled. So the time and place of performance at the agreed time, at the agreed place, at the agreed manner, तो उसको परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस यानी क्या, एक्ट करना, उसके तहत मैं कर रहा हूं, उस एक्ट में से दिखना। टेंडर मीन्स एन ऑफर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इफ द promiser is ready, willingly and actually offers to perform, but the promisee refuses to accept without a valid reason, the promiser is discharged from his liability for non-performance. That is called as a tender of performance. A valid tender must be unconditional for a full amount and made at the proper time and place. So remedies of for breach of, अगर ये परफॉर्म नहीं हुआ तो उसको हम क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये उसके कंसेप्ट है। व्हेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, both parties are legally bound to perform their promises. If one party fails to refuse to perform the contract, it is called a breach of contract. The party who suffers because of the breach has certain legal remedies, उसको कुछ rights मिलते हैं। तो क्या है, what is a breach of contract? That I just told that breach of contract is a unable to perform, fails to perform, refuses to perform. तो उसके कारण ये जो promises किए उसको नहीं करना, यानी breach of contract बोल सकते हैं। तो उसकी रेमेडीज क्या है, 5 रेमेडीज है। डैमेजेस, यानी डैमेजेस को कॉम्पेंसेट करना, फिनेंशियल कॉम्पेंसेशन। दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कोर्ट ऑर्डर से उसको ब्रीचिंग पार्टी को एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए बोल देना।
तीसरी काय आहे इंजंक्शन, म्हणजे कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन नॉट टू डू पर्टिकुलर एक्ट, ये भी उसकी रेमेडी है। और रिसेशन यानी कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजिंग both parties from the obligation, and the for quantum merit यानी जितना लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करना या उतना ही कंसिडरेशन पे करना, इस तरीके से इसका रेमेडीज रह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस, उसका पहला क्या है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस में क्या 4 टाइप्स रहते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस यानी जनरल, जो नेचुरल या डायरेक्ट लॉस है उसको फुलफिल करना, या स्पेशल डैमेजेस यानी स्पेसिफिकली यानी बहुत सारे डैमेजेस के बगैर, these damages are special losses arising from out of any situation, special circumstances। तो उस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को फुलफिल करने के लिए उसको फुल क्या बोलते हैं, उसको रिकवर कर देना, उसको स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेजेस यानी दीज आर अवॉर्डेड इन स्पेशल केसेस टू पनिश द रॉन्ग, जो जिसने गलत किया है उसको। ये रेयरली होता है, लीगली उसको पनिश किया जाता है। स्पेशली जो क्या checks bouncing, wrongfully dishonored the check by bank, breach of promise may promise to marry is also ये special exemplary damages बोलते हैं। एंड नॉमिनल damages means स्मॉल, किरकोल, नॉर्मली ये डैमेजेस को रिकवर भी नहीं किया जाता, नॉट एक्चुअली फिनेंशियल लॉस रहते तो उसको नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, उसको नॉमिनल डैमेजेस बोलते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी क्या कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस आर द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी फिक्स बाय द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही उसको उसमें डिफाइन किया होता है कि अगर इसको फुलफिल ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो क्या कॉम्पेंसेशन रहेगा। ये जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वो डैमेजेस की अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल सकते हैं। यानी liquidated damages are the damages agreed upon by both parties before the contract is broken। उनको मालूम रहता है कि अगर ब्रोक किया, ये एग्रीमेंट ब्रेक किया तो इसके कॉम्पेंसेशन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते, ये पहले उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में रिकॉर्डेड रहते हैं। और अनलिक्विडेड डैमेजेस यानी क्या, वो एग्रीमेंट में नहीं रहते, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट कैन डिसाइड the quantum of quantity of losses and the compensation, तो उसको अनलिक्विफाइड लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल सकते हैं। okay? तो डिफरेंस भी मैं जरा भगा रहा हूं, ये आप नोट्स में देख लेना क्या है। अमाउंट ऑफ फिक्स, अमाउंट फिक्स रहती है लिक्विडेटेड में, अनलिक्विडेटेड में नॉट फिक्स डिसाइड, ये डिसाइड पहले से ही रहती है लिक्विडेटेड, और अनलिक्विडेटेड में आफ्टर उसके ये एग्रीड, बोथ पार्टी को एग्रीड रहती है, कोर्ट में एग्रीमेंट बन जाता है। ये सारे एग्जांपल्स। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन यानी specific performance is a legal remedy in which the court orders the party who has breached the contract to actually carry out, यानी perform करो, the contractual obligations instead of merely paying monetary compensation। वो perform करने के लिए बोल सकते हैं। This is remedy is generally granted when money cannot adequately compensate the injured party, especially in case involving unique goods or rare property or special items। यानी suppose Rahul agrees to sell the unique painting to Amit, later Rahul refuses to deliver the painting, since the painting is unique, one kind of, which is a special, so easily not replaced by any other paintings in market, so court may order Rahul to deliver that painting to Amit।
rather simply paying the damages. This is called as a special performance and injunction. Uh, an injunction is the court order that directs a person not to do particular act. यानी कुछ करना नहीं, इसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया तो उसको इंजंक्शन बोलते. A famous singer agrees to perform only for event company A. Later, the singer planned to perform event company B also at the same time, at the same date. So, violating the contract. This is a violation of the contract. So, court may order that singer not to sing for company B. उससे इंजंक्शन बोलते हैं. कब ग्रांट करते हैं? इंजंक्शन इज ग्रांट व्हेन अ पार्टी इज अबाउट टू डू और is doing an act that breaches the contract and damages would not be an adequate remedy. तो उस वक्त ये कोर्ट ऑर्डर दे सकता है. Rescission and quantum merit. Rescission means cancellation of the contract. The parties are released from their obligations under the contract is available. It is available when the contract is voidable. For example, when consent was obtained through fraud, coercion or misrepresentation. तो उसको कोर्ट उसको कैंसिल करने के लिए बोल सकता है. और क्वांटम मेरिट यानी क्या? It is a Latin word meaning as much as is desired. यानी पेमेंट फॉर वर्क यानी रिजनेबल पेमेंट फॉर वर्क ऑलरेडी डन. आधा ही काम किया है तो आधा पेमेंट देने के लिए कंपल्सरी बोल सकते हैं. इसको क्वांटम मेरिट बोल. तो ये समरी है पूरी की पूरी समरी क्या है. You can stop this video and read it carefully. Okay. So thank you very much. We'll meet in next lecture also. Thank you.